Hello everyone, very good afternoon. Welcome welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi's team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining here today's session. And I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are talk about fixed asset module in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations, and development. So we deal with Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24, and Skill India. So now speakers are available here. So presentation will be conducted by Ms. Diksha, and live demonstrations will be done by Vikram. And as usual, the over recap will be conducted by Mr. Bhagwati Prasad Dandaria. So Diksha, are you here? Yes, ma'am. Yeah, and Vikram, are you here? Yes, ma'am. Yeah. Yes, welcome Diksha and Vikram. Welcome to Thank you, session. And Bhagwati sir, are you here? Yeah, I am available over here, Samita. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Diksha, go to the presentations and first introduce yourself and start the session. Yes. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. My name is Diksha Gaikwad, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. This is our full Rajlakshmi team. Now let's start for our module, fixed asset module in Tally ERP9. It's available for ERP9 also. Fixed asset introduction. It is an asset with a useful life of our 1 year owned and used by the project to achieve its stated objectives. Just like, for example, computer, furniture, vehicle, concrete mixer, photocopier, etc. जैसे कि असेट सबको पता है कि हम लोग जो यूज करते हैं ऑफिस यूज के लिए, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर कोई व्हीकल हो जाते हैं, या फिर सीपीयू हो जाते हैं, या फिर टेलीफोनिक डिवाइसेस हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें जो प्रिंटर हो जाती है, ये सारी डिवाइसेस जो हम लोग यूज करें या फिर प्रोडक्ट हम लोग जो यूज करें, इसको असेट बोलते हैं. ये जो असेट होते हैं ये हर साल डेप्रिसिएशन लेवल पे चले जाते हैं. तो इसके लिए इसको फिक्स असेट कहा जाता है, जो हम लोग हर साल यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं. फिक्स असेट मैनेजमेंट. फर्स्ट पॉइंट, फिक्स असेट मैनेजमेंट इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट सीक टू ट्रैक फिक्स असेट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थेफ्ट डिटरेंस. फिक्स असेट मैनेजमेंट ये जो है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस जो करने वाले हैं फिक्स असेट के लिए, जैसे कि उसको ट्रैक करना हो गया, उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखने वो हो गए, उसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं वो जानने के लिए, उसका मेंटेनेंस हम लोग कैसे करें वो जानने के लिए. इसके अलावा कुछ चीजें चोरी हो जाती है ऑफिस से, या फिर कुछ मिसयूज हो जाता है उसका, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो हम लोग रिपोर्ट्स दे रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, organization face a significant challenge to track the location, quantity, condition, maintenance and the depreciation status of their fixed asset. Organizations कैसे रहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच भी अलग अलग हो जाते हैं, तो कौन से ब्रांच में कौन सा सिस्टम रखा हुआ है या फिर कौन सा फिक्स असेट कहाँ पे रखा हुआ है, ये जानने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए कुछ चैलेंजेस आते हैं. जैसे कि उसका लोकेशन क्या है, उसके क्वांटिटीज कितने हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, या फिर हम लोग उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें पता चलने वाली है. थर्ड पॉइंट, अ पॉपुलर अप्रोच टू ट्रैकिंग फिक्स्ड असेट यूजेस सीरियल नंबर, असेट टैग व्हिच आर लेबल ऑब्टेन with barcode for easy and accurate reading. The owner of the asset can take inventory with a mobile barcode reader and then product a report. अभी सिस्टम ऐसे हो गया है कि वो जो ओनर है, वो फिक्स असेट जो भी हम लोग मेंटेन करें, उसके जो ओनर है वो क्या करते हैं कि इन्वेंट्री के लिए मोबाइल बारकोड रीडर ऑनलाइन
डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पता चल जाता है। जैसे कि फिक्स असेट पे जो लेबल हम लोग लगाते हैं या फिर जो टैग हम लोग लगाते हैं उसको स्कैन करके वो उसका रिपोर्ट जान सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट फिक्स असेट मैनेजमेंट का। इट इज डन फ्रॉम माय साइड। नाउ वी विल सी live demo of fixed asset module in Tally ERP9. Vikram sir, please continue. Thank you so much. Thank you, Diksha ma'am. Hello everyone. Good afternoon. My name is Vikram. I am from Raj Lakshmi Solution Private Limited. Today we will discuss about fixed assets module in Tally ERP9. Okay. I am sharing my screen. Vikram, your screen is not visible. Please try again. Okay. My screen Yes, visible or not? Yes, Visible? yes. Now visible. Vikram, go to. Okay, thank you ma'am. ये मैंने डेमो कंपनी बनाया है फिक्स असेट्स के लिए। ओके, फिक्स असेट्स सबसे पहले ना फिक्स असेट्स का एक टीसीपी आता है, तो टीसीपी को अटैच करना होता है टीडीएल को। तो वो कहाँ से हम अटैच करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे F12 में। F12 में कॉन्फ़िगर, ओके, कॉन्फ़िगर सेकंड प्रोडक्ट एंड फीचर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है F4 करके, मैनेज लोकल टीडीएल। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी अपना पाथ रहेगा टीसीपी का एंटर करके उसको सेव कर देने का। जैसे ही हमने टीसीपी अटैच किया, हमको फिर F11 में एक ऑप्शन यस करने होते हैं। F11 में वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, F11। विक्रम, ये आपके बैकग्राउंड में काफी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा एक भी चेक कर लें। ओके, 2 मिनट का ना। हम अब फिक्स असेट्स का जो ऑप्शन है वो यस करेंगे। हम जाएंगे F11 फीचर्स में, सेकंड अकाउंटिंग फीचर्स। ओके, ये जो ऑप्शन है फिक्स असेट्स, ये चारों ऑप्शन हम यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद हमें गेटवे टैली पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक फिक्स असेट्स इन्फो करके और एक फिक्स असेट्स रिपोर्ट। अभी हम फिक्स असेट्स इन्फो देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स असेट्स ऑटो सेटअप। ठीक है, ये क्या होता है ना, फिक्स असेट्स ऑटो सेटअप, जो भी फिक्स असेट्स के वाउचर वगैरह होते हैं, वाउचर लेजर्स क्रिएशन, ये ऑटो सेटअप कर लेता है। जिसपे हम जैसे एंटर करेंगे, डू यू वांट टू एनेबल फिक्स असेट्स ऑटो सेटअप, इसको जैसे हम यस करेंगे वो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमको लेजर्स वगैरह चाहिए, जो भी हमको वाउचर टाइप चाहिए, वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सेकंड है डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, एंटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अल्टर में जाके। ठीक है, यहाँ पे 2 मेथड है, एक SLV और एक WDV। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है एसेट्स क्लासिफिकेशन। एसेट्स क्लासिफिकेशन क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। अल्टर, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ये क्या होता है ना, जो भी हम आइटम क्रिएट करते हैं ना, उसके अंडर जो ग्रुप लेते हैं ना, ग्रुप, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, जो भी इसका
सेटअप होगा वो हम इसमें से ही करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में गया मैं, ठीक है, अंडर लिया मैंने फिक्स असेट्स, ओके। फिर ये जो ऑप्शन है ना, सेट अल्टर डेप्रिसिएशन डिटेल्स, इसको जैसे हम यस करेंगे ना, यहाँ पे आपसे पूछेगा वो कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और 2 मिनट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने दिया है WDV रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक है। ये कब से अप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 19 से। कितना परसेंटेज लगेगा? 60%, ठीक है। तो मैंने ऐसा सेट किया हुआ है इसको, एंटर 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 एक्सेप्ट। मैंने इतने सारे ग्रुप जो है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 10% है। क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाके नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है अपना एसेट्स आइटम, ठीक है। ये आइटम क्या है? जो अपना स्टॉक आइटम होता है ना, स्टॉक आइटम, वही से मैं आपको दिखाता हूँ। एक अल्टर में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने सारे आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक देखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे अंडर में मुझे ना कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स लेना है, ये जो मैंने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं ना ऑलरेडी, ये लेना है मुझे, ठीक है। और आपको ये मेंटेन इन बैचेस, ये ऑप्शन यस करना है। बाकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आपको करना है, अपना GST जो अभी अप्लीकेबल रहेगा वो आपको यस नो करना है, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फोर्थ है अपना कस्टोडियंस। कस्टोडियन में मैंने भी क्रिएट किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ अल्टर पे जाके। पहला क्रिएट किया मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कुछ नहीं रहेगा, प्राइमरी रहेगा। ये जो ऑप्शन है यूज एज एम्प्लॉय, ये ऑप्शन यस होगा। सेकंड अपना HR डिपार्टमेंट, थर्ड है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है अपना लोकेशन, मतलब आप कहाँ पे कहाँ से आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो लोकेशन यहाँ पे देना जरूरी होता है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अल्टर में जाके मुंबई करके। आप यहाँ पे मुंबई जहाँ पे आप रहते हो थाने वाने, तो अभी आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको ये जो ऑप्शन है ना, यूज फॉर इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आपको यस करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये ऑप्शन नो रखेंगे तो क्या होगा। ये ऑप्शन मैं नो रखता हूँ तो मुझे अल्टर में जाने देगा नहीं वो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर, डिस्प्ले में नहीं, कुछ नहीं, अल्टर में भी कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ जैसे कि थाने, ठीक है। ये ऑप्शन यूज करूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं अल्टर पर जाऊंगा तो मुझे वो दिखेगा थाने करके, ओके। ठीक है, ये तो अपने मास्टर्स हो गए अपने। हाँ, मास्टर अपने को कैसे क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन मेथड कैसा क्रिएट करना है, एसेट्स क्लासिफिकेशन, एसेट्स आइटम कैसा क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंट्रीज। एंट्रीज कैसे होंगी? एंट्री से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें एक वाउचर टाइप क्रिएट होगा। वाउचर टाइप जो क्रिएट किया हुआ है मैंने अकाउंट इन्फो में, वाउचर टाइप अल्टर कैपिटल परचेस करके, ठीक है। तो अपना कैपिटल परचेस रहेगा, सेलेक्ट टाइप, वो जर्नल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रखना है वो रख सकते हो आप। बस आपको ये जो ऑप्शन है ना, इज यूज्ड फॉर फिक्स असेट्स,
वो ऑप्शन आपको यस रखना है, बिहेवियर टाइप आपको कैपिटल परचेस लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्ट्रा में जाके मिलेगा। ये ऑप्शन नहीं क्रिएट है तो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अभी उसका ही मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ एंट्री से दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पे मैंने एंट्री वगैरह क्रिएट किया हुआ है फिक्स असेट्स का, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड डाइस, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मैनुअल फील्ड रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने ए दे दिया। यहाँ पे मेरा एजुकेशन मोड पे इसलिए मैं 8 दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी जो आपने, हाँ देखिए ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये भी मेरा लेजर क्रिएट होगा, ओके। आपको मैं दिखाता हूँ, बाहर जाके एक बार वापस से अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अंडर माना जाएगा वो फिक्स असेट्स, मतलब मेन ग्रुप अपना फिक्स असेट्स रहेगा, सब ग्रुप अपना प्लांट एंड मशीनरी रहेगा। ऐसा ही मैंने कंप्यूटर का भी क्रिएट किया हुआ है, ओके। कंप्यूटर्स का है तो कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स में अंडर जाएगा फिक्स असेट्स में, ओके। मेन ग्रुप अपना फिक्स असेट्स रहेगा, सॉरी। अब अभी जाता हूँ डे बुक में, डिस्प्ले डे बुक, ओके। ये मैंने क्रिएट किया, मेरा एजुकेशन मोड पे से मैंने 1 तारीख का डेट लिया, ठीक है। जो भी मेरी एंट्री थी वो मैंने एंट्री की। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि आइटम के अंदर बैच नंबर यस करना जरूरी है, तो जो हमारा बैच नंबर है ना वो हमने रिनेम किया यहाँ पे असेट्स आईडी करके, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आपका असेट्स आईडी रहेगा ना वो नंबर डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और जो भी डेट रहेगा वो डेट डालना है, और कस्टोडियन नेम पूछेगा आपसे, ये मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में आप परचेस कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर जो भी नॉर्मल एंट्री, क्वांटिटी ले लिया मैंने, रेट ले लिया और अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। फिर वापस से मैंने लिया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेने के बाद जो भी उसका अमाउंट रहेगा वो डाल दिया मैंने, यहाँ पे अब मैंने लिया इनपुट IGST, यहाँ पे ले लिया पार्टी का नाम, ठीक है। पार्टी में क्रेडिट हो रहा है करके, ठीक है। ये एंट्री आपको ऐसा करना है, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे परचेस की भी एंट्री एज इट इज है और जर्नल की भी एंट्री देखिए आप एज इट इज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आपको ओके, ठीक है। फिर परचेस की एंट्री, नॉर्मल परचेस की एंट्री, जैसा आप नॉर्मल परचेस की एंट्री करते हैं वैसा, ओके। इस पे आपने CGST रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पे परचेस ऑर्डर की एंट्री, ओके। ठीक है, ये एंट्री लेवल हो गया, ओके। अब मैं आपको इसका रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स, ठीक है।
रिपोर्ट्स के लिए आपको जाना है यहाँ पे फिक्स असेट्स रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे असेट्स अपडेट्स करके हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है असेट्स पुट टू यूज। एंटर किया मैंने, तो जो भी मैंने एंट्री किया था कैपिटल परचेस में वो पूरी एंट्री यहाँ पे आपको शो करेगी असेट्स पुट टू यूज में। जो भी डेट है वो पर्टिकुलर पार्टी का नाम, वाउचर टाइप है अपना वाउचर टाइप का नाम, अभी आपने जो भी वाउचर नंबर डाला रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। असेट्स नेम में आपका आइटम का नाम और असेट्स आईडी मतलब बैच, जो भी आपने नंबर डाला रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और असेट्स अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट डाला रहेगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको जब एंटर करता हूँ ना, ये एंट्री के ऊपर जब मैं एंटर करूँगा, ठीक है, तो ये मुझसे पूछेगा असेट्स पुट टू यूज, ठीक है। आप कब कौन से डेट में डाल रहे हो असेट्स, तो आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, ठीक है, जो भी डेट रहेगा वो डाल देना है। ऐसे ही सबका करना है आपको। तो भी यहाँ पे जो रिपोर्ट दिख रहा है आपको, ये सब जर्नल एंट्री से आ रहे हैं, ये भी आपका जर्नल एंट्री है, ठीक है। सेकंड है अपना कस्टोडियन डिटेल्स, ठीक है। अभी अपने जर्नल की एंट्री में अगर आपने डेट डाल के जो कस्टोडियन नेम अकाउंट डिपार्टमेंट, आचार डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर वो लिया है तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपने नहीं भी लिया है तो भी दिखाई देगा, ठीक है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जाके आपको कोई भी एंट्री पे एंटर करना है, अगर आपने नहीं डाला है तो एंटर करना है, फिर अपने आपको अप्लीकेबल डेट डालना है, ठीक है। अप्लीकेबल डेट डालने के बाद आपसे पूछेगा कस्टोडियन नेम, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है आपको और सेव कर देना है एज इट इज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मेरा इंश्योरेंस डिटेल, ठीक है। और ये भी मेरा रिपोर्ट है इंश्योरेंस का, यहाँ पे भी आपको शो रिपोर्ट में शो कर रहा है डेट, पार्टी का नाम, वाउचर टाइप का नाम, वाउचर नंबर और एसेट्स नेम और एसेट्स आईडी, ठीक है। अभी आपको ये किसी एंट्री में आपको अगर अपडेट करना है डेटा इंश्योरेंस डिटेल्स, तो आपको सेम आके यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम देना है, जो भी नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डालना है आपका, ठीक है। आपने कब लिया था स्टार्टेड ऑन, और वो एक्सपायर कब होगा वो यहाँ पे आपको डालना है, ओके। ये सारी फील्ड मैनुअल है, आपको सारी फील्ड में डाल सकते हो आप। और थे अपना वारंटी एंड एएमसी डिटेल्स, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज है, जो भी हमने एंट्री की है वही शो करेगा। अब यहाँ से आपको वारंटी और एएमसी का कुछ डिटेल वगैरह डालना है, तो इसमें भी सेम एज इट इज आपको एंटर करना है, इफेक्टिव डेट डालना है, कब से वो अप्लीकेबल होगा वारंटी, डेट डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, ठीक है। एक्सपायरी डेट जो भी रहेगा वो, और कुछ भी जो नंबर दिया रहेगा आपको वो, फिर वो नंबर का एक्सपायरी डेट और इफेक्टिव डेट और एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये हो गया अपना वारंटी डिटेल। सेकंड है एएमसी डिटेल्स, अगर एएमसी का डिटेल भी आपको ऐड करना है तो पीरियड आपको डालना है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्विसेज डालना है, ठीक है। सीरियल नंबर, आपने क्या सर्विस लिया उनसे, सर्विस टाइप जो भी रहेगा वो टाइप कर देंगे, ऑन और बिफोर, और कितना अमाउंट है वो अमाउंट डाल देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क,
ठीक है, इसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट है अपना असेट रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर में आप जो भी डेट डालेंगे, जैसे 1 अप्रैल 19 से लेकर मुझे ये डेटा देखना है, किसका, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स का सिर्फ देखना है मुझे, या फिर इसका देखना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट दीजिएगा। अभी मेरी एंट्री उतनी है ही नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, सीरियल नंबर, परचेज डेट, परचेज इनवॉइस नंबर, असेट सब ग्रुप, जो उसका सब ग्रुप है वो दिखेगा, और असेट्स का नाम मीन्स स्टॉक आइटम का नाम, एसेट्स नेम मीन्स का बैच नंबर जो रहेगा डाला रहेगा वो, और पुट टू यूज डेट, जो आपने डेट रिपोर्ट के टाइम पे डाला डेट, वो डेट आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका क्वांटिटी। ठीक है, और आपने कौन सा गोडाउन में लिया है वो। ठीक है, सप्लायर नेम, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब आपको पूरा शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ कस्टोडियन का देखना है तो कस्टोडियन का, वारंटी का देखना है तो वारंटी का, और एएमसी का देखना है तो एएमसी का। ठीक है, इसको भी मैं एस्केप करता हूँ। उसके बाद अपना एक रिपोर्ट और है जो अपना शेड्यूल 3 करके है। ये क्या है, जो हमने डेप्रिसिएशन में दो बनाए थे, एसएलवी करके और डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू, और ये आपको यहाँ पे इसका रिपोर्ट शो करेगा। जैसे आप इस पे जाएंगे, एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ग्रुप वाइज आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर और उसका डेप्रिसिएशन कितना है और क्लोजिंग कितना बचा है, वो सब आपको पूरा रिपोर्ट शो करेगा। ठीक है, इस पर जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ से आप बेसिक एंटर करेंगे तो आपकी एंट्री भी यहाँ से ही ओपन हो जाएगी। एंटर करके ये देखिए। ओके, अगर आपने एसएलवी का भी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ जाएगा एसएलवी करके। बाकी सब तो नॉर्मल है। आपको एंट्री करना है तो आपको एंट्री अकाउंटिंग वाउचर से एंट्री करना है। जैसे कि मैंने जर्नल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा किस में एंट्री करना है आपको, कैपिटल परचेस में करना है एंट्री, तो आप कैपिटल परचेस में एंट्री कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो, Yeah, but it's done from your side? यस सर, यस सर। It's okay, great. Yes, Amra, Yes, please. yes. Okay. Okay, thank you, Diksha and Vikram. So now time is over review, complete over recap. So over to Bhagwati sir. Yeah, thank you, everyone. Good evening. This is from Bhagwati from Raj Lakshmi Solutions. So today is a presentation of the fixed assets management. So mostly organization, they are already in the, just like a private limited company, and they have to maintain all the assets and depreciations according to the income tax rules and different of the rules. There's different rules as according to the government. So we have to manage all the assets, and we have to track all the assets. We have to, compliance, that depreciation, like that, all the things we have to maintain in the single running stock. So mostly people are using Tally. So Tally mein everybody want to manage the assets in the Tally also. Compliance with the accounting part, balance sheet, everything we are doing throughout the Tally. So depreciation is a very big part in the Tally. So we have to maintain the fixed assets management in the Tally also.
So fixed assets management tally में कैसे और better हो सकता है? So there is a, yes, we can create the assets, we can just put in the groups and we can maintain the assets in simple way. But in terms of the advanced level, so we have to customize the tally. We customize the tally. So according to many of the customer have needed that type of the solutions, we develop this solution for the multiple customers. Many of the customers are using these solutions and they are getting the benefits of the fixed assets management, right? So इस particular product, इस module के through you can manage your assets different locations में. आपके पास जो assets है उसकी track रखना आपके लिए मुश्किल था कि आपके पास किसी भी एक लोकेशन में huge numbers of the assets है, huge numbers of the different departments है और उस डिपार्टमेंट में अलग अलग एसेट पड़ी हुई है. तो उसका लोकेशन कैसे मेंटेन करें, उस एसेट को कैसे मेंटेन करें, कौन सी एसेट मैंने कब खरीदी थी उसको ट्रैक हम कैसे करें, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के रूल्स कैसे लगेंगे और उस डेप्रिसिएशन के रूल्स जो है हमें क्या मैनुअल करने पड़ेंगे. तो अर्लियर पीपल आर यूजिंग, हमने देखा है वो जिन लोगों ने पहले अभी जो टैली में जो हमारे पास फिक्स एसेट मैनेजमेंट जिन लोगों ने डेवलप करवाया, सपोर्ट किया, हमें आई एम थैंकफुल टू दैट गाइस कि उन्होंने ये चीज़ों को बैठ करके उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी अपना टाइम दिया. तो वी डेवलप दिस थिंग्स अर्लियर. दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द एक्सेल्स एंड दे आर वेरी फेसिंग दिस बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द ट्रैक ऑफ द एसेट्स. After this module, we developed every small steps in the tally itself, जहाँ पर हम पूरा का पूरा एसेट मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं. उसके परचेस से लेकर के उसके डिस्पोजिशन तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके स्टॉक्स को मेंटेन कर सकते हैं, लोकेशन वाइज ट्रैक कर सकते हैं पूरी चीजों को, और कब किस साल में क्या डेप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर जो रूल्स लगेंगे, उस रूल गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहते हैं परसेंटेज, उसको मेंटेन करते हुए एवरी ईयर एक सिंगल क्लिक्स पे हम इन चीज को ऑटो पास कर सकते हैं, जिससे हमारा कंप्लायंस में जो एसेट मैनेजमेंट में जहाँ लोगों को 10, 15, 20 डेज लगते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट टाइम, तो वो डेप्रिसिएशन को हम फ्यू आवर्स में हम लोग कंप्लीट फाइनलाइजेशन में जा सकते हैं. तो ये मॉडल जो है एसेट्स पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए 360 डिग्री काफ़ी हेल्पफुल है. चेकिंग करने के लिए वहाँ हमने बारकोड भी बनाए हैं, तो यू कैन ऑल्सो जनरेट द बारकोड, यू कैन ऑल्सो पुट द बारकोड ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम जो जब आपने खरीदी है, तो यू कैन ऑल्सो टैग टू द स्कैनर एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर कि जो हमने बनाया है इसके अलावा भी कुछ कस्टमर्स को अपनी रिक्वायरमेंट डिफरेंट आती है, तो वी आर डेवलपिंग अकॉर्डिंग दैट ऑल्सो. सो यू कैन ईजिली हैंडल योर एसेट, ट्रैक योर एसेट, गेट द बेनिफिट्स, एंड आपकी जो एसेट मिसमैनेजमेंट के कारण काफ़ी डैमेज होती है और जो आपकी थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, यू कैन ऑल्सो ट्रैक कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो ये सभी चीज़ों का बेनिफिट आपको इस फिक्स एसेट मैनेजमेंट में मिलता है. यू कैन सेव योर टाइम एंड मनी बोथ. तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द फिक्स एसेट मैनेजमेंट. So that things is from my side in terms of the fixed assets management. Next मैं in terms of the Rajalakshmi मैं आज आपको ये अपडेट करूँगा कि you can check these videos in our YouTube channels. हमने जितने भी वीडियोस आज तक जितने भी सेमिनार्स किए हैं वो सभी वीडियोस आपको YouTube चैनल पर अपकमिंग वीक में हमारे अपलोड हो जाते हैं एंड आप उसको चेक कर सकते हैं. In terms of the various people are using just like a Tally Academy like that, they are using our channel because वहाँ पर Tally के बारे में हर एक छोटे फीचर्स के वीडियोज अपलोडेड हैं. आपको अगर कोई भी वीडियोज अगर आपको देखना है, कोई भी लर्न करना है, अगर कोई भी टॉपिक्स पे लर्निंग करनी है, तो यू कैन चेक आउट आवर YouTube channels. You subscribe our YouTube channel and get the benefit of it. And there is no limitation of the times. Whenever you want, you can learn. So this is one thing for the learning purpose. Next मैं आपको बोलूँगा कि in terms of the financial year ending, we are running lot of we are offering lot of things in the terms of the Tally on Cloud, Tally customizations, Tally AMCs, and various type of the like other services like CRM,
like SAP Business One. So this is a right time to see the software and also get the benefits of the different modules and implementations, trainings and support, ताकि 1 अप्रैल से आप अपने अकाउंट्स को पूरी तरीके से, आप अपने सिस्टम को पूरी तरीके से फुल प्रूफ कर सकें। उसके लिए हमने आप लोगों के लिए काफी अच्छे ऑफर्स लाके रखे हैं। तो यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ यू, or my number is also populated in our Zoom chat, so you can connect with me also. So you will get the lot of advantage, discounts, and get the best solution for your organization, and you can run your organization smoothly and in the next financial year. So that's why we are running a lot of offer in the financial ending offer, and we are implementing lots, and in terms of the training, in terms of the other things. So that's it from my side. So Sampada, is over to you. Thank you. Yeah, thank you, sir, for your valuable time. So this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So now we are going to wind up the session. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in next webinar. Thank you. Bye-bye.